Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 15th of November 2021, Monday. Inspiration of the day is the purpose of life is not to be happy, it is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some differences that you have lived and lived well. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 1. India INC earnings hit record rupees 2.4 trillion. So top listed Indian companies have reported their best ever quarterly net profit, that is of 2.39 trillion in the month of September, or in the September quarter of financial year 22, and that is in comparison to the previous year 46.4% high. And if we talk about the sectors, that particularly led this high ever net profit is non-banking financial companies, banks, insurance companies, oil and gas, metal and mining firms. So these sectors are actually leading this best ever quarterly net profit growth. And if we combine all these three cyclical sectors, what are these cyclical sectors? Banks, non-banking financial companies, and oil, gas, metal, and mining firms, those who are actually leading this surge. If we combine all these factors or all these sectors, their collective profit was approximately 87% year on year to a record high, that is approximately 1.53 trillion. And this number is up from 82,000 crore a year ago and approximately 1.08 trillion in quarter 1 of financial year 22. तो जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है इंडिया की जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं जो बेसिकली इंश्योरेंस, नॉन बैंकिंग, बैंकिंग, ऑयल, गैस, मेटल, माइनिंग फर्म से बिलोंग करती हैं, उनका कलेक्टिव प्रॉफिट 87% ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में. और ओवरऑल अगर हम टॉप लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो 46.4% का ग्रोथ रजिस्टर किया है इन द सितंबर क्वार्टर. किस इंडिकेटर्स पर? दैट इज नेट प्रॉफिट. और as per the record, as per the data, this is the best ever quarterly profit that Indian companies has reported so far. And the companies that are belonging with these three sectors, what are these three sectors? These three sectors are actually accounted for 94% of the incremental growth into the overall corporate profit for financial year 22. So for financial year 22, quarter 1 and quarter 2. तो ओवरऑल अगर नटशेल में हम ये बताएं तो बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस, मेटल एंड माइनिंग फर्म्स, ये सारे सेक्टर फाइनेंशियल ईयर 22 में सबसे अच्छे या हाईएस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहे हैं. जो कंपनीज इनसे बिलोंग करती हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनका नेट प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में सबसे अच्छा रहा इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टोरल परफॉर्मेंस. और अगर इन सेक्टर्स को निकाल दिया जाए या इन सेक्टर्स की कंपनीज को निकाल दिया जाए जो अच्छा प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रही हैं, तो जो रेस्ट ऑफ इंडियन आईएनसीज हैं, जो रेस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज हैं, उनका प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में केवल और केवल 5.3% तक बढ़ा है. और पिछले अगर हम एक डिकेड की बात करें यानी 10 सालों में, लास्ट 10 ईयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो टॉप 3 प्रॉफिटेबल कंपनीज आई हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कॉर्पोरेट अर्निंग, वो कमोडिटी और एनर्जी सेक्टर से बिलोंग कर रही हैं. सो कौन सी वो 3 कंपनीज हैं? ONGC, रिलायंस इंडस्ट्री एंड JSW स्टील. तो ऐसा 10 सालों में पहली बार हुआ है कि जो टॉप 3 कंपनीज आई हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इन टर्म्स ऑफ देयर नेट प्रॉफिट, वो कमोडिटी और एनर्जी सेक्टर से बिलोंग कर रही हैं. अगर हम देखें ONGC का प्रॉफिट, तो ONGC ने लिस्ट को टॉप किया है. अब 565% ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज इन इट्स कॉर्पोरेट प्रॉफिट. हमें कह सकते हैं 500% का इंक्रीज देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में इन केस ऑफ ONGC's नेट प्रॉफिट.
वही रिलायंस इंडस्ट्री का भी सेम केस है, पिछले साल के कंपैरिजन में 43% का हाइक है। टाटा स्टील का पिछले साल के कंपैरिजन में 600% से भी ज़्यादा का हाइक है। एंड JSW का भी 350% ज़्यादा प्रॉफिट है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर, फॉलोड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेदांता एंड जिंदल स्टील. So these few companies are actually breaking the record, and this is the graph that we can see. Definitely you do not need to mug up the data. केवल इतना याद रखना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में किस किस सेक्टर की कंपनीज ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस एंड दिया. तो हम ये दे सकते हैं दिस इज नेट प्रॉफिट अप अगेन. इट्स समवेयर इंडिकेटिंग दैट नाउ इंडियन इकोनॉमी इज ऑन रिकवरी पाथ. बैंक और नॉन बैंकिंग NBFCs अगर ये कंपनीज प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी इकोनॉमी हेल्दियर है. दिस इज द डेटा फॉर नेट सेल फॉर ऑल कंपनीज ex BFSI और ex BFSI ऑयल एंड मेटल. तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स कि कितना डाउन हुआ था एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जबकि कोविड-19 का वेव चल रहा था, और इसके बाद से अब ये फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हो चुका है, जबकि कुछ केसेस में ये डिक्रीज़ भी हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कुछ सेक्टर्स में डिक्रीज़ भी दिख रहा है. So, अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4. RBI's ombudsman scheme to make redress process seamless expert. If you remember, recently we have discussed about the two schemes that were actually launched by our Prime Minister. एक पहली स्कीम थी रिटेल पार्टिसिपेशन को लेकर के, जिसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय ओपनिंग देयर अकाउंट विद RBI. दूसरी स्कीम थी RBI के ओम्बड्समैन को लेकर के, जो कि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करी थी. तो आज के न्यूज़पेपर में इसी पर्टिकुलर स्कीम को थोड़ा सा एलैबोरेट फॉर्म में डिस्कस किया गया है. तो देख लेते हैं. अगर ये दो स्कीम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट content for your upcoming exam. So that the integrated ombudsman scheme that is launched by RBI, जो कि ऑलरेडी 3 स्कीम्स चल रही हैं लोकपाल को लेकर के बैंक में, उन तीनों स्कीम को मर्ज करके लॉन्च किया है. उन 3 की जगह ये पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो रिसेंटली लॉन्च हुई है ये चलेगी, और इसका सीधा सीधा एक ही पर्पस था, वन नेशन वन ओम्बड्समैन मैकेनिज्म. और जैसा कि इस गवर्नमेंट का हमेशा से ही मोटो रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन. सो यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने की बात करी गई है इन केस ऑफ बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो, जहाँ पर ओम्बड्समैन से रिलेटेड या गवर्नेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टर्स और अकाउंट होल्डर के इंटरेस्ट से रिलेटेड यूनिफॉर्म नॉर्म्स हों, जिससे कि इन्वेस्टर्स, बैंक अकाउंट होल्डर्स, इन सब के राइट्स को इंश्योर किया जा सके. तो वन नेशन वन ओम्बड्समैन मैकेनिज्म के तहत RBI ने ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लॉन्च करी है. एंड एज पर द एक्सपर्ट, this will go long way to boost the customer confidence in the banking sector. And by this integrated scheme of ombudsman, the grievance redressal process, grievance redressal, it means the grievances that customers are having with their banking system, with any branch, with any official of the bank, that particular grievance redressal process can be seamless. That particular integrated ombudsman scheme will provide single window to every individual or the whistleblower in case of any grievances. So there will be single platform to the customer, and definitely this particular single platform will provide the hassle-free documentation, hassle-free complaint process, and speedy resolution of any complaint, any grievances, or any dissatisfaction. So one of the important characteristic of this scheme is the single platform or single window for the customer to file any complaint against any individual, against any branch, against any bank for any mishappening, for any corruption related practices. And the scheme, as per the RBI, will provide the cost free redressal also. So definitely single platform, integrated mechanism एंड कॉस्ट फ्री रिड्रेसल. इट मीन्स कस्टमर को बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी फॉर फाइलिंग द कंप्लेन. और डेफिशिएंसी किसी भी तरह के बैंकिंग सिस्टम में या बैंकिंग की सर्विसेज में, जो ऐसी एंटिटीज जो कि RBI रेगुलेट कर रही है, अगर ऐसी एंटिटीज़ में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी होगी उनकी सर्विसेज में, तो दैट डेफिशिएंसी कैन डायरेक्टली बी रिपोर्टेड बाय दिस सिंगल
platform, and this will provide to the complainant if it is not resolved to his or her satisfaction or not replied within a specific period of time, that is 30 days by regulated entity थ्रू इंटरनल मैकेनिज्म. अगर कंप्लेनेंट की कोई कंप्लेन है और उस पर्टिकुलर ब्रांच ने या एंटिटी ने उसको 30 दिन के अंदर रेगुलेट नहीं किया, उस 30 दिन के अंदर उस कंप्लेन को, डिससेटिस्फैक्शन को, डेफिशिएंसी को एड्रेस नहीं किया, इन दैट केस कस्टमर कैन डायरेक्टली गो टू this particular integrated ombudsman for filing the complaint. And as per the RBI के according to deficiency in services, जो कि एक important clause है इस particular scheme के तहत, उसको RBI ने बहुत clearly define किया कि it is a any shortcoming, it is any shortcoming or any inadequacy in any financial services which entities regulated by it are supposed to provide and resulting in financial loss और डैमेज टू द कस्टमर. तो किसी भी तरह की सर्विस में कमी जिससे कि कस्टमर को किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो या किसी भी तरह का डैमेज हो, दैट पर्टिकुलर सर्विस और दैट पर्टिकुलर सिचुएशन विल बी कॉल्ड एज अ डेफिशिएंसी एंड सर्विसेज, एंड customer can directly report this particular deficiency in services into this newly launched integrated ombudsman scheme. इससे पहले क्या था? इससे पहले 3 ombudsman की स्कीम चलती थी बैंक में. कौन कौन सी? बैंकिंग ombudsman scheme, ombudsman scheme for non-banking financial companies and ombudsman scheme for digital transactions. तो तीनों के लिए, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, एनबीएफसीज के लिए, बैंक्स के लिए और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग ओम्बड्समैन थे. बट अब क्या किया है, जो नई स्कीम आई है इसके तहत सिंपली अ कस्टमर कैन फाइल अ कंप्लेंट फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज ऑनलाइन थ्रू अ पोर्टल दैट इज डिजाइन बाय आरबीआई फॉर दिस पर्पस. तो चाहे वो डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सर्विस डेफिशिएंसी हो, चाहे वो एनबीएफसीज की सर्विसेज से रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी हो, या बैंक्स जो हैं उनसे रिलेटेड कोई सर्विस डेफिशिएंसी हो, ऐसी कोई भी एंटिटी, बैंक हो चाहे एनबीएफसीज हो चाहे वो पेमेंट एग्रीगेटर हो, अगर आरबीआई रेगुलेट कर रही हो उस एंटिटी को, तो सिंपली वो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत कस्टमर जो है सर्विस कंप्लेन फाइल कर सकता है. और दोनों ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, यानी ऑनलाइन कंप्लेन भी और फिजिकल मोड के थ्रू भी कस्टमर कंप्लेन कर सकता है और कंप्लेन की उसको प्रॉपर रिसीट प्रोवाइड करी जाएगी. रिसीट मिलेगी, इसका मतलब प्रॉपर रिड्रेसल होगा विद इन टाइम बाउंड मैनर. तो एक्सपर्ट का कहना है कि जो नई ओम्बड्समैन की स्कीम आई है, दिस विल एक्चुअली बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर्स. और पैंडेमिक के बाद जो सिचुएशन ख़राब हुई है बैंकिंग इंडस्ट्री में, उसको लेकर भी इसमें थोड़े से रेमेडीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस बैंकिंग, एनबीएफसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन में और बूस्ट हो. और जिस तरह से इंडिया ये प्रमोट कर रहा है आगे आने वाले टाइम में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डिजिटल पेमेंट को और डिजिटलाइजेशन को इन केस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम वाज एक्चुअली डिजायरेबल एंड इम्परेटिव, और इसीलिए आरबीआई ने उसको टाइमली मैनर में लॉन्च किया है. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. सेंटर प्लान्स टू गिव स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पावर टू डीपीई. इफ यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस दिस न्यूज़ प्रीवियसली ऑल्सो, जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस है उसके कुछ राइट, कुछ पावर को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस या अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको डेलीगेट कर दिया जाए, जिससे कि डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस, डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस वो थोड़ी ईजी हो सके, हैजल फ्री हो सके. क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स हैं, प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीडिंग्स हैं, डिसीजंस हैं, वो एक्चुअली पेंडिंग हैं बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल. गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है इस बार डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स की रिसीट को लेकर के फाइनेंशियल ईयर के बजट में, लेकिन बहुत सारे लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, पॉलिसी हर्डल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे जो प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट हैं पिछले सालों में वो भी नहीं हो पा रहे. अगर आपको पता हो और आप अवेयर हो तो एयर इंडिया को लेकर के कितने टाइम बाद एयर इंडिया का सेटलमेंट हुआ. इसी तरह से LIC और जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स हैं, वो सब पेंडिंग है. और इसी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो बेसिकली इस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनको कुछ पावर डेलीगेट कर दी जाए. सो नाउ यूनियन गवर्नमेंट इज लुकिंग टू डेलीगेट सम पावर इन इट्स स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस टू डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस which has now been brought under the Ministry of Finance. पहले आप मुझे बताएंगे कि DPE जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, ये अभी तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर लाया गया, इससे पहले कहाँ था?
कि इससे पहले किसी और मिनिस्ट्री के अंडर ये वर्क करता था या ये डिपार्टमेंट था ही नहीं, इट इज़ अ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डिपार्टमेंट। तो कमेंट सेक्शन में लेकर बताइए कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अब इससे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आने से पहले, के अंडर आने से पहले किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर काम करता था। So the government may empower the department to seek the approval on candidates for privatization from cabinet after Niti Aayog suggested names of public sector enterprises for strategic disinvestment. If you know कि नीति आयोग जो फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करता है कि किन किन कंपनीज का या किन किन पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट होना है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस को पावर दी जा रही है कि जब नीति आयोग नाम सजेस्ट करे उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अप्रूवल देगा उन कैंडिडेट्स को कि उनका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होना है उन पीएसयूज का कि नहीं होना है। द प्लान इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ मेजर टू रिड्यूस द डिले इन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बाई 12 to 13 मंथ्स। और अगर ये प्रपोजल एग्जीक्यूट हो जाता है तो 12 से 13 महीने का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन होगा, 12 से 13 महीने का टाइम बचेगा अप्रॉक्सीमेटली, जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएसयूज में जाता है। जबकि डिसइन्वेस्टमेंट के लिए पीएसयूज को आइडेंटिफाई किया जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 महीने लगते हैं, या बोल सकते हैं 1 साल के आसपास लगते हैं। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो 1 साल जो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएसयूज में जाते हैं टू एग्जीक्यूशन फॉर द ट्रांजैक्शन, वो रिमूव हो जाएंगे या वो टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल दैट इज बीइंग डिस्कस, द एग्जिस्टिंग टास्क ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम दीपम बोलते हैं, ऑफ टेकिंग द कैंडिडेट फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन टू द कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज on disinvestment and subsequently to the alternative mechanism and then cabinet में इंटरेस्ट विद द DPE। तो ये अभी प्रोसीजर जो फॉलो होता है, पहले दीपम के पास जाता है, फिर कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट के पास वो प्रपोजल जाता है, वो लिस्ट जाती है जैसे जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करना होता है पीएसयूज का, इसके बाद वो कैबिनेट के पास जाती है, देन कैबिनेट जो है वो DPE को ये डायरेक्ट करता है, फॉरवर्ड करता है वो फाइल। तो this with the particular proposal will also help the DPUM to share its responsibility. At the same time, it aimed to quickening the current process as per the official. So for fast tracking that disinvestment process, maybe Department of Public Enterprises is going to play a very key or pivotal role in complete process. तो नीति आयोग के बाद अब सीधा जो है वो DP के पास प्रपोजल जाएगा, इसके बाद प्रॉबेबली कैबिनेट या जो अदर हैं डिपार्टमेंट, जो अदर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट्स हैं उनके पास अप्रूवल करें। तो DP और दीपम यहाँ पर साथ में काम करेंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द PSUs दैट विल गो फॉर प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। एंड इफ दिस प्रपोजल गेट फाइनलाइज अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 महीने का जो टाइम है वो सेव होगा। सो लेट अस सी हाउ गवर्नमेंट विल एक्चुअली कंसीडर दिस प्रपोजल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। इस पर्टिकुलर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट येस यहाँ पर एक रिपोर्ट की बात करी गई दैट इज लीड्स रिपोर्ट। दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड नो अबाउट दिस रिपोर्ट। सो देख लेते हैं इस न्यूज़ में क्या है। यूजफुल लीड्स रिपोर्ट ऑन लॉजिस्टिक्स इन स्टेट्स। लास्ट मंडे को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में लीड्स रिपोर्ट भी बोल रहे हैं। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द टीम ऑफ लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल्स ऑफ EI LLP। तो एक मल्टीनेशनल कंसल्टिंग कंपनी है जिसने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रैंकिंग डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ देयर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। कि किस पर्टिकुलर स्टेट में, यूटी में लॉजिस्टिक कितना एफिशिएंट है, कितना ईज है, उसी के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनकी रैंकिंग करी गई। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है वैसे ही ईज ऑफ डूइंग लॉजिस्टिक भी हम इसको कह सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट हैज़ लिस्टेड द वेरियस एक्शंस दैट इज टेकन बाय ईच स्टेट टू इम्प्रूव द ईज ऑफ स्टोरेज, ease of goods movement, identification of the shortcoming in physical and regulatory and operational environment। और उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट को सजेशन दिए गए हैं, उनकी रैंकिंग करी गई है कि वो किस पर्टिकुलर रैंक या पोजीशन में आ रहे हैं और
क्या उनको इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, क्या उनको रिकमेंडेशंस फॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर रैंकिंग सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर ईज ऑफ लॉजिस्टिक. एंड फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस द रिपोर्ट क्रिएट्स 3 categories of ranking. First for 21 states, second for northeastern states and Himalaya Union Territories, and third list is for UTs of Delhi and Chandigarh. और इस रिपोर्ट में 17 क्राइटेरिया, वी हैव द 17 क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड 4 क्राइटेरिया दैट इज बेस्ड ऑन objective data, unlike the earlier 2 reports in financial year 18 and 29 जहाँ पर केवल फीडबैक जो कस्टमर का परसेप्शन था वो लिया गया था. बट इस बार जो स्केल डेवलप करी गई है उसमें ऑब्जेक्टिव डेटा को भी इंक्लूड किया गया है. इट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करने की बात करिए, क्योंकि कभी कभी परसेप्चुअल स्टडीज़ में बायसनेस भी आ जाती है. तो इसीलिए 17 इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि दिस मेथोडोलॉजी इज़ मोर अनबायस्ड, मोर ऑब्जेक्टिव, एंड इट प्लेसेस गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एट द टॉप, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. तो जिन स्टेट्स ने टॉप किया है लिस्ट, वो गुजरात, हरियाणा और पंजाब हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन्होंने पिछले साल के कंपैरिजन में या पिछली रैंकिंग के कंपैरिजन में अच्छा इम्प्रूवमेंट रजिस्टर किया है. जबकि मध्य प्रदेश, आसाम और आंध्र प्रदेश ने पिछले साल की रैंकिंग के कंपैरिजन में उनकी रैंकिंग फॉल करी है, या हम ये कह सकते हैं कि उनका जो ईज ऑफ लॉजिस्टिक है वो इम्प्रूव ना होकर के डिक्रीज हुआ है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लीड्स रिपोर्ट. थोड़ा बहुत आप इस रिपोर्ट के बारे में देख सकते हैं बिकॉज दिस कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. इंडिया हैज इट्स वे ऑन coal use. So negotiator for nearly 200 countries have accepted the new climate agreement after COP26 summits in Glasgow concluded with a deal that recognizes India's intervention for the world to phase down rather than phase out fossil fuels. तो इंडिया का जो एक इम्पॉर्टेंट स्टैंड था इस पर्टिकुलर COP26 में, वो इंडिया ने कहा कि कंट्री को या वर्ल्ड को रादर देन फोकसिंग ऑन इमीडिएटली फेज आउट फॉसिल फ्यूल, country or the world should focus on phase down. And number of countries have endorsed this stand of India, and they have actually recognizes India's intervention for the world for phase down rather than going for phase out in case of fossil fuels. तो इंडिया का ये कहना है, सीधा सीधा अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस न्यूज़ को समझाया जाए तो इंडिया का कहना है कि इमीडिएटली फेज आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किस चीज़ पर, कोल पर और फॉसिल फ्यूल एनर्जी रिक्वायरमेंट पे. तो इमीडिएटली फेज आउट ना करके फेज डाउन अगर प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो दैट विल बी अ मोर इक्विटेबल और मोर रिलायबल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर रिड्यूसिंग द यूज ऑफ non-renewable और fossil fuel energy sources. और ये COP जो 26 है, दिस इज़ द फर्स्ट COP जहाँ पर सीधे सीधे कोल के यूजेस को रिड्यूस करने की बात कही गई है और इमीडिएटली फेज आउट करने की बात की थी, जहाँ पर इंडिया और चाइना ने फेज डाउन का जो अप्रोच है उसको सपोर्ट किया है. और ये कहा है कि सबका अपना, इंडिया का अपना तरीका है कोल को यूज़ करने का, और अगर हमें रिड्यूस करना है कोल का यूजेस तो फेज डाउन मैनर में रिड्यूस करेंगे रादर देन गोइंग फॉर फेज आउट अप्रोच. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Teething issue remain for HPCL ONGC merger. So PSUs, ONGC and HPCLs have been developing the synergies since the former brought the government stake in HPCL in a 36,000 crore deal over a 3-year ago. तो जब से ONGC ने HPCL में जो गवर्नमेंट का स्टेक है 36,000 करोड़ में खरीदा है, तब से लेकर के आज तक 3 साल हो रहे हैं, और उन 3 सालों के बीच में दोनों ही कंपनी इस बात को लेकर ट्राई कर रही हैं कि दोनों के बीच में, दोनों के ऑपरेशंस के बीच में सिनर्जी क्रिएट करी जाए. हालांकि अगर ONGC की बात करें तो ONGC वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन. बहुत ज़्यादा ONGC का मैनेजमेंट हैप्पी नहीं था विद दिस परचेज ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन HPCL, और ONGC का ये कहना है कि दिस हैज़ लेफ्ट द ऑयल एक्सप्लोरेशन मेजर विद द टाइट कैश. इस पर्टिकुलर डील के बाद ONGC पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर पड़ा है.
जिसकी वजह से ONGC का जो फाइनेंशियल जो कैश की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टाइट रह रही है। एंड डिस्पाइट हुकिंग अ कंट्रोलिंग स्टेक इन HPCL, ONGC के पास अभी भी कोई भी मैनेजरियल कंट्रोल नहीं है। तो उनका ये कहना है कि वो HPCL के डिसीजन को डायरेक्ट भी नहीं कर सकते, उसको रेगुलेट भी नहीं कर सकते, और उस पर उन्होंने इतना फंड लगाया हुआ है, इसके बाद भी उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या आउटकम ONGC को नहीं मिल रहा है। So unresolved issues, however, continue to remain with these two PSUs, which work under the administrative control of Union Ministry of Petroleum and Natural Gas. And that is why, because of these number of unresolved issue, ONGC जो है वो continuously, और दोनों ही कंपनी continuously इस चीज़ को ट्राई कर रही है कि दोनों के बीच में synergy हो. The center, though the Public Enterprises Section Board continue to recommend the appointment of senior position in HPCL without consulting the ONGC. और ONGC का कहना है कि हमारे कंसल्टेशन से जो टॉप मैनेजमेंट है उसका अपॉइंटमेंट हो. वाई? बिकॉज वी ओन द कंट्रोलिंग शेयर होने के बाद भी, कंट्रोलिंग स्टेक होल्डर होने के बाद भी हमारा कोई डिसीजन मेकिंग राइट नहीं है HPCL के केस में. तो इसीलिए ONGC इज़ नॉट वेरी मच हैप्पी. और दोनों ही कंपनी का जो 3 साल पहले का एक्चुअली मर्जर हुआ था, मर्जर भी ये कह सकते हैं आप इसको या नहीं भी कह सकते, जहाँ पर ONGC ने HPCL का गवर्नमेंट ओन्ड स्टेक खरीदा था, उसके बाद भी HPCL ONGC को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा. बिसाइड ONGC वांटेड द ऑफिस ऑफ HPCL चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टू बी डिफरेंट हैंड विद द former going to the ONGC head, and this is the stake, or we can say the division of state between the HPCL and ONGC. So let us see how this particular problem gets resolved. अब देख लेते हैं next clip. Tenure of ED CBI chiefs extended to up to 5 years through ordinance. So days before the winter session of the parliament, गवर्नमेंट हैज़ पास द 2 ऑर्डिनेंस. 2 ऑर्डिनेंस पास कर दिए गए. ऑर्डिनेंस आप सबको पता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है फॉर इमरजेंसी इशू. बट दिस गवर्नमेंट इज एक्चुअली यूजिंग दिस ऑर्डिनेंस पर्पस और रूट फॉर सम अदर पर्पस. तो फिलहाल पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, विंटर का सेशन, उससे 2 दिन पहले संडे को इस गवर्नमेंट ने 2 ऑर्डिनेंस पास कर दिए. और उस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI और ED के चीफ से उनका टेन्योर 5 साल तक के लिए और बढ़ा दिया गया है. एज पर द रिसेंट न्यूज़, द चीफ्स ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करंटली हैव 2 years tenure, and the ordinance are clearly aimed to ensure the continuation of current ED chief, that is Mr. S.K. Mishra, who is already on extension, having reached 60 years in 2020. और इसके अलावा जो CBI के चीफ हैं उनका भी टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है. हालांकि दिस एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट दिस इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन, बट येस वी शुड नॉट डेल्व इनटू दैट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस न्यूज़ ओनली. नाउ लेट अस लुक इनटू द other clip. Delhi air quality improves, government to submit lockdown proposal to court. So फिलहाल जो सीवियर से पुअर कैटेगरी में, वेरी पुअर कैटेगरी पर आ गई है जो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI. आफ्टर दिवाली आपको पता होगा कि 999 का मार्क क्रॉस कर चुकी थी, 999 का मार्क्स क्रॉस कर चुकी थी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके बाद दिल्ली और NCR रीजन की जो एयर क्वालिटी थी वो सीवियर की सिचुएशन में आ गई थी. फिलहाल के लिए सीवियर से वेरी पुअर का जो है वो खिताब मिल चुका है दिल्ली की एयर क्वालिटी को. यस, बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, बट दिस इज स्टिल वेरी पुअर एंड हैजार्डियस टू द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल दोज हु आर लिविंग इनटू दिस रीजन. और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो अब लॉकडाउन का भी प्लान कर रही है कि कुछ दिन का लॉकडाउन शायद इम्पोज किया जाए, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाए, जिससे कि एयर क्वालिटी को कुछ इम्प्रूव किया जा सके. हम सभी को पता है सबटल बर्निंग जो है दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस एवरी ईयर फिनोमिना ऑफ दिल्ली एंड NCR रीजन इन केस ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स. लेकिन इस साल का अगर डेटा देखें तो 24% का डिक्रीज देखने को मिलना है किसमें, सबटल बर्निंग में. लेकिन अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबटल बर्निंग डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज हुई है. हरियाणा के अलावा जितने अदर स्टेट्स हैं, यूपी, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, MP, इन सारे स्टेट्स में सबटल बर्निंग रिड्यूस हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली सबटल बर्निंग की जो प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर में उसको हटाना चाह रही है, जिससे कि जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, NCR रीजन का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सके और इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो हो रहा है वो उसको कंट्रोल किया जा सके. सो लेट अस सी हाउ दिस पर्टिकुलर
subtle burning exercise or subtle burning process or practice can be removed in future, but yes, it is a high time that government should take a proper decision on it. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.